children, we are reading chapter number 13, North America. And today we will read about the natural vegetation and wildlife of North America. North America is a continent where bearing Mediterranean vegetation, all type of vegetation of world are found. Due to diversity in climate and uneven distribution of rainfall, diversity is witnessed in vegetation also. North America is rich in forest wealth. तो नॉर्थ अमेरिका में मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के अलावा बाकी सभी तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं और यहाँ पर अनइवन रेनफॉल होता है। इसकी वजह से जो वेजिटेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है वो फॉरेस्ट वेल्थ माना जाता है। वेल्थ फॉरेस्ट की दृष्टि से वह बहुत रिच है। द डिस्टेंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टुंड्रा रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो for maximum period of the year. Mostly the land is covered under snow, so big trees cannot grow. अब जो नदर्न पार्ट है, टुंड्रा जिसे बोलते हैं, वह जो है वहाँ पर पूरे साल में मैक्सिमम स्नोफॉल होता रहता है और इसकी वजह से वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। The tundra vegetation, which includes moss, lichen, small shrubs, some flowers bearing plants and a few varieties of grass, grow here. The animal which is found here is called reindeer and known as कामधेनु of Eskimos. अब स्नोफॉल होने के कारण बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे श्रब्स पाए जाते हैं और बहुत डिफरेंट तरह की ग्रास पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर एनिमल होते हैं, वो एनिमल जो वहाँ पर मोस्टली पाया जाता वह रेनडियर कहलाता और वह एस्किमोस का कामधेनु कहलाता है। इन द साउथ ऑफ टुंड्रा द वाइड स्ट्रेच ऑफ east to west experiences very cold winter and summer is normal. In this entire area the coniferous forest belts are found. ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टुंड्रा के साउथ में बहुत ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल रहता है, जो क्लाइमेट है वो उस वक्त नॉर्मल रहता है। और यह पूरा जो एरिया है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेल्ट कहलाता है। मतलब कि वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं, इसलिए उन्हें कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोला जाता है। क्योंकि स्नोफॉल होता रहता है तो उसकी वजह से एक तो उनकी ब्रांचेस जो हैं वो झुकी हुई होती हैं और उनका जो शेप होता है ऊपर का कोन टाइप का होने के कारण पूरे जो आइज़ है वो नीचे पहुंच जाती है और उसके कारण वो अच्छे से जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। These forest contains trees of cher, larch, spruce and fir. The woods of the trees of these forests are very soft and they are used as pulp for paper and furniture. The wood cutting therefore is very advanced business in Canada. These forests have wildlife like beaver, polar bear, fox, wolves, rabbits and stages. अब ये जो फॉरेस्ट हैं यहाँ से पेपर और फर्नीचर बनाने के लिए पल्प पाया जाता है और वुड कटिंग जो है कनाडा का एक एडवांस बिजनेस है। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है बीवर, पोलर बियर, फॉक्स, वुल्व्स, रैबिट, स्टेजिस, ये सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं वो पाए जाते हैं। Children, you have to read the chapter deeply and word to word. I will give you only summary. So let's start. The redwood tree is in the valley of California is known as the tallest and oldest tree of the world, having largest trunk. रेडवुड ट्री है कैलिफोर्निया में, वह वर्ल्ड का टॉलेस्ट और ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है जिसकी लार्जेस्ट ट्रंक है। In the southwest, tropical vegetation are found. The area receives very scanty rain. Various types of thorny bushes and cactus are found there. Only crawling creatures are found in the desert of Arizona. Children, here is the given capital of the North American countries.
So you have to read and learn all these countries and capital also of the North America. Like this, Canada, the capital of Canada is Ottawa. The capital of USA is Washington DC. The capital of Mexico is Mexico City. The capital is Cuba is Havana. Like this, you have to learn all these cities and their capitals. Now, exercise of the chapter. Choose the correct. First, Gulf Stream and Labrador Current is the correct answer. फर्स्ट का सी है. सेकंड का मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सपेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पेज नंबर 117. तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना नॉर्थ सेकेंड लाइन से लेकर के ये 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक. नाउ नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पेज नंबर 119. This is the page number 119. The highest peak of the Cordilleras is Mount McKinley of North America. इस तरह से आपको लिखना है. It is in Alaska. Now, question number 3. Write the names of the Great Lakes of North America, page number 121. And you have to start from here. The names of the Great Lakes of North America are, here is name given: Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario. Now next question, which are those 4 continental ocean currents that influence the climate of North America? This answer is in page number 122 and you have to write down like this. 4 continental ocean currents are, इस तरह से लिखेंगे. The 4 continental ocean currents are, ये 4 currents के आपको नेम लिखने हैं. द गुल्फ स्ट्रीम, अलास्का करंट, लेब्राडोर करंट, कैलिफोर्निया करंट. तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द हॉट एंड कोल्ड करंट्स फ्लोइंग नियर कोस्ट अफेक्ट्स द क्लाइमेट मोस्टली. और फिर द 4 मेन करेंट्स आर द गुल्फ स्ट्रीम, अलास्का करंट, फर्स्ट द गुल्फ स्ट्रीम, सेकंड अलास्का करंट, थर्ड लेब्राडोर करंट एंड फोर्थ कैलिफोर्निया करंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, पेज नंबर 124. और आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द क्वालिटीज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर, ऐसे लिखेंगे. फर्स्ट, द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज स्टूप लो एंड सेकेंड, दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. ये 2 इसकी क्वालिटीज हो गई. नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. राइट नेम्स ऑफ 3 प्लेट्यूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका विथ देयर लोकेशंस. तो ये 3 प्लेट्यूज के आपको लिखना है. फर्स्ट, इंटर माउंटेन प्लेट्यू ग्रेट बेसिन, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड ये लिखेंगे इन द ईस्ट देयर इज लेब्राडोर प्लेट्यू एंड थर्ड इन साउथ ईस्ट लाइज द प्लेट्यू ऑफ अपालेचियन. ये 3 प्लेट्यूज. नेक्स्ट, राइट द रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन द वेजिटेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पेज नंबर 123. ये आंसर आपको यहाँ से लिखना है. नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट वेयर बेरिंग मेडिटेरियन वेजिटेशन, यहाँ से लेकर के फॉरेस्ट वेल्थ तक. नाउ नेक्स्ट, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन वेजिटेशन. ये आप खुद से लिखेंगे. यू हैव टू डू दिस आंसर बाय योर सेल्फ. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डिलेरस एंड कैनियन, पेज नंबर 119. तो ये आपको दिया हुआ है. ये आंसर कॉर्डिलेरस एंड कैनियन, ये आपको लिखना है उसमें. शॉर्ट आंसर 4. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. राइट द नेम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज फिजिकल फीचर्स एंड डिफाइन इन ब्रीफ, पेज नंबर 119. ये नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स है. ये 3 हैं: द वेस्टर्न कॉर्डिलरस, द ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड द सेंट्रल लो लैंड्स. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. नॉर्थ अमेरिका में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फिजिकल डिवीजन्स. यहाँ से लेकर के आपको लिखना है द वेस्टर्न कॉर्डिलरस. द वेस्टर्न कॉर्डिलरस में
आपको ग्रेट बेसिन तक लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रेट बेसिन तक लिखेंगे। फिर ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, ये आपको ईस्टर्न हाईलैंड्स में यहाँ तक लिखना है, बिटवीन 450 to 2000 मीटर यहाँ तक। एंड द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स में आपको ये यहाँ से लेकर पूरा 1 पैराग्राफ लिखना है प्रेरी प्लेन तक। नाउ सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन, मेंशन अबाउट द कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये पेज नंबर 123, 24 एंड 25 में देखेंगे। पेज नंबर 123 से फर्स्ट सेंटेंस लेंगे, द डिस्टेंस नदर्न पार्ट से लेकर के पीरियड ऑफ द ईयर तक, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ बता रहे हैं तो फिर ये यहाँ से लेकर फिर लिखेंगे द एनिमल्स विच इज़ फाउंड से लेकर के एस्किमोस तक, फिर इन द साउथ ऑफ तुंद्रा से लेकर के पूरा ये फाउंड तक, और ये पूरा पैराग्राफ ये रैबिट एंड स्टेजेस तक, ये आपको वाइल्ड लाइफ में लिखना है। नाउ कोनिकल ट्री, तो कोनिफरस फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोबोरेट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पेज नंबर 121 एंड 22। तो ये लॉन्ग आंसर है, ये देयर आर 4 फैक्टर्स, ये पूरे चारों फैक्टर लिखेंगे और इनका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप। थर्ड में सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ तक लिखेंगे और फोर्थ में आपको लिखना है ये न्यू फाउंड लैंड के पहले तक ये रीजन्स एक्सट्रीमली कोल्ड यहाँ तक लिखेंगे, द हॉट एंड कोल्ड करंट से लेकर के एक्सट्रीमली कोल्ड तक। अब यहाँ पर मैप स्किल दी गई है, ये जो आपको प्लेसेस दिए गए हैं, ये एक आपको खाली मैप लेना है नॉर्थ अमेरिका का और उसमें सारे प्लेसेस को फिल करना है। तो फेयर कॉपी में या आप इस तरह का ये एक मैप नॉर्थ अमेरिका का बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से लेकर के उसे पेस्ट कर सकते हैं और ये सारे जो प्लेसेस इसमें दिखाए गए हैं ये सारे प्लेसेस आपको उसमें फिल करना है। आप इमेजिनरी लाइन भी चाहें तो उसमें बना सकते हैं। So children, here is your chapter number 13 is finished. We will start chapter 14 in the next video.